ایک قلم ہو، ایک کتاب ہو اور ہو تیری پرواز، تعلیم بنے پنکھ تیرا، علم ہو تیرا ساز، قلم اٹھا خواب لکھ، سچ کی راہ اپنانا، بدلے گا کل یقین سے، بس آج کو تو سنبھالنا، نہ ہو نشہ نہ ہو دعا اور نہ ہو کوئی اندھیرا، نہ ہو نشہ نہ ہو دعا اور نہ ہو کوئی اندھیرا، پرواز ہو تیری شاہین سے آگے، ہر پل ہو نیا سویرا، قلم اٹھا خواب لکھ، سچ کی راہ اپنانا، بدلے گا کل یقین سے، بس آج کو تو سنبھالنا۔ میں دانش علی ہوں اور آپ آواز آواز دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم شمالی کشمیر کے بارہمولہ علاقے میں موجود ہیں اور آج ہم جس شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں وہ کشمیر کے جو بہترین استاد ہیں ان میں سے ایک ہیں، آسما جان، جنہیں 2023 میں کشمیر میں بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ حاصل ہوا ہے اور کشمیر میں الگ الگ ضلعوں میں الگ الگ اسکولوں میں انہوں نے اپنی خدمت انجام دی ہے، اور اسی بہترین ٹیچر سے آج ہم ملنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم آسما جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں؟ فائن میم، آپ ٹھیک ہے میم؟ بالکل ٹھیک، اچھے سے۔ بس فائن، کافی ٹائم سے ہم کوشش کر رہے تھے آپ سے ملے، تو آج فائنلی وقت نے ہمیں آپ سے ملایا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آسانی سے ایڈریس مل گیا۔ بیسٹ میم، بیسٹ۔ چلے پلیز تھینک یو، اچھا شکریہ۔ بیٹھیے میم آپ۔ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے بھی آپ نے پڑھایا ہے۔ بالکل، آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں اینڈ آئی ایم پراؤڈ۔ تو 2023 میں آپ کو بیسٹ ٹیچر کا بھی ایوارڈ ملا ہے، تو کبھی سوچا تھا جب آپ میرے ٹیچر تھے کبھی میرا اسٹوڈنٹ آئے گا اور مجھے انٹرویو کرے گا؟ میرا اسٹوڈنٹ آئے گا مجھے انٹرویو کرے گا، یہ مشکل بات ہے، کیونکہ میں نے اتنا نہیں سوچا تھا کہ مجھے سراہا جائے گا پھر میرا اسٹوڈنٹ جرنلسٹ بن کے مجھے انٹرویو کرے گا، مگر ہاں اگر اس اینگل سے دیکھا جائے کہ میرا اسٹوڈنٹ آئے گا جرنلسٹ ہوگا PhD کرے گا، یہ میں نے سوچا تھا۔ تو میم جب بانڈی پورہ کی بات آتی ہے، آپ کا تعلق اصل میں بانڈی پورہ سے ہے، تو آپ کے فیملی ممبرس نے شعبہ قانون میں اپنا ایک خاص نام وہاں پہ بنایا اور آلموسٹ آپ کی پوری فیملی قانون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو آپ کا یہ شفٹ ایجوکیشن میں یہ کیسے؟ بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ ہاں، میرے ڈیڈی لائر ہے، میرا بھائی لائر ہے، میری بہنیں لاء کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے، میری دوسری بہن یونیورسٹی میں لاء کی پروفیسر ہے، بس میں ایک ہوں جو ایجوکیشن میں ہوں۔ ہمارے ٹائم پہ ایک کریز رہتا تھا، یا تو آپ کو انجینئرنگ میں اپلائی کرنا ہوتا تھا یا MBBS میں، سب بچوں کا یہی شوق، یہی دو چیزیں ہماری نظر میں تھی۔ جو آج کل بہت سارے اسٹریمس ہیں، بہت سارے فیلڈس میں بچے جاتے ہیں، ہماری نظر محدود تھی MBBS اور انجینئرنگ کے لیے، تو میں نے بھی انجینئرنگ میں اپلائی کیا، میرا ہو گیا کوالیفائی ایگزام، دین واٹ ہیپن، میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی۔ شی واز ان ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، تو جب ڈیورنگ سروسز ان کی ڈیتھ ہو گئی، میری اسٹڈیز رک گئی ون وے اور دا ادر، فیملی کے کچھ، تو دین میں نے اپنی اسٹڈیز ڈسکنٹینیو کی، میں گھر میں رہی اور میرا SRO بیسس پہ اپوائنٹمنٹ ہو گیا ایز ٹیچر۔ تو میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کے لیے چنا، اس کام کے لیے، سم تھنگس which were undone by my mom, I'm here to complete those things۔ تو اب آج کی ڈیٹ میں مجھے لگتا ہے میں اسی فیلڈ کے لیے بنی تھی۔ تو انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، تو اگر آج آپ ٹیچر نہیں ہوتے پھر ایک بہترین انجینئر ہو سکتی تھی، تو خوش ہیں اس پروفیشن کے ساتھ ابھی آپ ایجوکیشن میں؟ حد سے زیادہ، شاید اگر میں وہ فیلڈ کنٹینیو کرتی تو میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی۔ ایک جاب کرنا، پھر انسان میں وہ سیٹسفیکشن ہونا، سیٹسفیکشن بڑی بات ہے، ایک پیس آف مائنڈ، سولیس ملنا، وہ مجھے اس فیلڈ میں ملا۔ آسما جی، ابتدا میں نے بتایا کہ آپ نے الگ الگ اسکولوں میں اپنی خدمت انجام دی ہے، تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ منشیات کی جو بڑھتی ہوئی لت ہے اس پہ آپ نے کافی زیادہ کام کیا ہے اور کئی بچوں کو منشیات سے آپ نے دور بھی رکھا ہے، تو ایجوکیشن ٹھیک ہے لیکن منشیات کی بڑھتی لت کو روکنا یا اس پہ کام کرنا ذہن میں کیسے آیا؟
मुझे लगता है ये हर किसी टीचर के जहन में आना चाहिए. अभी अगर कुछ असातिज़ा साहिबान के जहन में ये नहीं है, दिस इज़ द राइट टाइम टू वर्क ऑन इट. क्योंकि आप आज देखिए, आज सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? ड्रग्स. और हमें बच्चों को अवेयर करना चाहिए अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स. तो यही मतलब मंशियात की इस बढ़ती हुई लत से हमने देखा कि कहीं नौजवान, कहीं फैमिलीज सड़कों पे आई, बर्बाद हुई. तो एज टीचर या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये कहता है कि दिन गुजरा, सब कुछ गुजरा, अपने काम के साथ या अपने दफ्तर के साथ बिजी होता है, तो आपने कैसे सोचा कि नहीं इसी पे काम करना है, इन बच्चों को मंशियात से दूर रखना है? बिल्कुल. मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में पोस्टेड थी, मेरी शादी नहीं हुई थी तब. तो मैं हायर सेकेंडरी बॉयज़ में पढ़ाती थी और आप उसी टाइम पे शायद मेरे स्टूडेंट थे. उन दिनों क्या हुआ, यहाँ पे लोन साहब हमारे डीसी साहब थे. उन्होंने देखा कि मेरे में एक वो मोटिवेशन है, मैं बच्चों को मोटिवेट अच्छे से कर सकती हूँ. लोन साहब ने एक कमेटी बनाई, ड्रग एडिक्शन कमेटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट. आई वाज द ओनली टीचर फ्रॉम होल डिस्ट्रिक्ट जिनको उन्होंने चूज़ किया और मुझे बोला कि आप में मोटिवेशन अच्छी है मैम, आप इसकी मेंबर रहो. और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे ही स्टूडेंट मेरी ही हायर सेकेंडरी में शायद इन्वॉल्व होना शुरू हो चुके थे. मेरे पास एग्जाम्पल्स भी थी, हमने उनकी फ़ाइल बनाई, उनकी काउंसलिंग की. आज वो बड़े ओहदे पे है माशाल्लाह. हमने बहुत काम किया. एक कंसर्न था मुझे बच्चों के साथ, एक बॉन्डिंग थी बच्चों के साथ, जिसने इस चीज़ को मेरे अंदर पैदा किया कि नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए ये सब करना है. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अबाउट दिस थिंग सम 20 years बैक. और बांडीपुर से लेकर बारामूला तक अभी भी मैं ड्रग एडिक्शन पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, अवेयर करती हूँ बच्चों को इल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स. क्योंकि आप देखिए, मैंने अभी भी आपसे कहा कि हमें बच्चों को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है, सिर्फ हमें बच्चों को ऐसा बनाना है कि लाइफ में फेलियर्स भी आते हैं. ऐसा है नहीं कि लाइफ में फेलियर्स नहीं है, मगर ऐसा ना हो कि वो सीख करे हार्मफुल एस्केप्स. हार्मफुल एस्केप क्या है उनके पास? मंशियात. ऐसा ना हो कि वो ये रास्ता सीख करे. ऐसा हो कि वो अगर गिर जाए, उनमें ऐसी क्षमता हो, उनमें ऐसी हिम्मत हो, उनमें ऐसा जज्बा हो, गिर के उठे और फेस करे उस फॉल को. मेरा ये शौक है कि लफ्ज़ों को बयां करती हूँ. लोग समझते हैं जिसे शायरी, मैं जज्बात बयां करती हूँ. बात है, शायर बनना आसान नहीं, दर्द जिगर चाहिए. मैं तो बस यूं ही अल्फाज बयां करती हूँ. ऐसी राइम्स खुद डिवाइस की हैं छोटे बच्चों के लिए, जो हम मिल के गाते हैं. और गाते एक प्ले वे मेथड में उनको ट्रैफिक रूल्स पता चल जाते हैं, इल इफ़ेक्ट्स ऑफ जंक फूड्स पता चल जाते हैं. धीरे धीरे गाते उनको कुछ एक सीख पहुंच जाती है. मैं चाहती हूँ मैं ऐसा कंटेंट बनाऊँ बच्चों के लिए, एक ऐसा टेक्स्ट बनाऊँ जिनमें बच्चे खुद ही सीख जाएँ कि हमें किस चीज़ से दूर रहना है, किस चीज़ को अपनाना है. आसमा जी, एजुकेशन के साथ साथ हुकूमत ने आपको खास जिम्मेदारी भी दी थी और लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन में आपको एक खास जिम्मेदारी दी गई थी. तो उस जिम्मेदारी के हवाले से आपसे जानने की कोशिश करेंगे पहले. हाँ, एग्जैक्टली. हमारे कश्मीर में एक हिस्टोरिक स्टेप था कि पिंक पोलिंग स्टेशंस बनाए गए. पिंक पोलिंग स्टेशन खास तौर पर टू कंडक्ट द इलेक्शंस, जो खास तौर पर वहाँ जहाँ पे वोटर्स आपके ज़्यादा फीमेल्स थे, उनके लिए हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि यहाँ पे पिंक पोलिंग स्टेशंस रखेंगे. दोज विल बी इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड इन दीज पोलिंग स्टेशंस बाय फीमेल्स. P1, P2, P3 जो स्टाफ वो भी फीमेल्स का ही होगा. एंड लकीली गवर्नमेंट ने, मतलब हमारे जो DC साहब हैं और उनके साथ ACR साहब थे, उनको टीम्स बनानी थी. आई वॉज चोजन एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ वन ऑफ द पिंक पोलिंग स्टेशंस एज एट आज़ादगंज. ठीक है. तो पहले लगता था कि रात को आप फीमेल्स को पोलिंग स्टेशन में रहना है. सवेरे इलेक्शंस, द मोस्ट सेंसिटिव असाइनमेंट ये कंडक्ट करना है. आप इसकी सेंसिटिविटी जानते हैं कि कितना सेंसिटिव असाइनमेंट होता है. हमें ट्रेनिंग्स दी गई, 1-2 सेशंस दिए गए, हमें प्रिपेयर किया इसके लिए. तो लकीली मैं भी इस हिस्ट्री का एक पार्ट बन गई. तो हमने सक्सेसफुली कंडक्ट करे राज्यसभा इलेक्शंस भी और लोकसभा इलेक्शन. दोनों टाइम पे मुझे पिंक पोलिंग स्टेशन में एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे काम को सराहा. आसमा जी, आपने अगर आज की बात करेंगे तो कई गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है. हम देख रहे चंद सालों से जिस तरह से इंतज़ामिया की जानिब से कदम लिया गया है, एनरोलमेंट ड्राइव, तो
बांडी पुरा की बात करेंगे, बारामूला, ऑलमोस्ट अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, आपने कई स्कूलों में अपनी खिदमत अंजाम दी है। इस एनरोलमेंट ड्राइव को आपने किस तरह से देखा है? अगर देखा जाए ये एनरोलमेंट ड्राइव, मैं पर्सनली, मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 24 इयर्स का, मैं कहती हूँ कि एनरोलमेंट ड्राइव एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों तक ये बात पहुँचाने कि गवर्नमेंट आपको क्या क्या फैसिलिटीज़, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनको ये भी नहीं पता है कि स्कूल्स में बच्चों को क्या क्या मिले, हमारा हक क्या है, ठीक है, हमें किन स्कूल, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को इंदराज कराते हैं, उनका एडमिशन कराते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो वहाँ कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं। एक आप देखिए, एक गैप था लोगों में, एक वो दिमाग में था कि शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती है। अब some government schools are at par with private school. Let's walk in. अब आखिर पर आपकी क्या मैसेज है जो जिन बच्चों को आपने पढ़ाया है, और ख़ास और पूरी वादी कश्मीर की जब बात आती है, जितने भी तालिब इल्म हैं, फीमेल और मेल, इन सब बच्चों के लिए क्या मैसेज है? मेरे लिए इनका एक मैसेज ये रहेगा कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए। मैं सिंपल एक चीज़ बोलूँगी, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको फ्री एजुकेशन मिलती है, फ्री एडमिशन्स होते हैं, फ्री मिड डे मील्स मिलते हैं, ठीक है, फ्री यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म के पैसे आपके अकाउंट्स में जाते हैं। आप ये मत देखिए कि ये सब गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलता है, शायद गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं इसलिए, नहीं, ये गवर्नमेंट आपको पैकेज दे रहा है, एक इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए, ठीक है, और एट द सेम टाइम मैं उनको बोलूँगी अपने आप पे भरोसा रखिए, हार्मफुल एस्केप्स से बचिए। जैसे कुछ बच्चे ड्रग्स की लत में लग जाते हैं, नहीं, उन एस्केप से बचिए। फेलियर्स को आप नेगेटिवली मत लीजिए, हाँ फेलियर्स आते हैं, हर किसी की लाइफ में फेलियर्स आते हैं, फेलियर्स को फेस कीजिए, हार्मफुल एस्केप्स मत ले लीजिए, फेस कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है, वक्त उनका है। और मैं चाहूँगी कि पॉजिटिविटी पे ध्यान दें, नेगेटिव एस्पेक्ट की ओर जाए ही ना, क्यों जाएं। अपना कीमती वक्त देने के लिए आवाज़ द वॉइस की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जो आपका एक ख़ास कंट्रीब्यूशन वादी कश्मीर में है, आवाज़ द वॉइस की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और फिर से अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड करने के लिए, मुझे से एक कॉमन टीचर को प्रोवाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए, ये तकल्लुफ़ उठाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवाज़ द वॉइस।